کئی بار میرے جو ہماری زندگی میں ایسے بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور بہت سے بہن بھائی آپس میں بھی ہم چرچا کرتے ہیں کہ کیسے جب ہماری جو ہے دعائیں رک جاتی ہیں، کیا میاں بیوی کا سلوک نہ ہونے کی وجہ سے یا گھر میں کا نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں جو ہے ہماری رکتی ہیں۔ آج اس کے بارے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کلام کا روح ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ کلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کیا واقعی جو ہے گھر میں چھوٹے سے جھگڑے سے یا ناراضگی سے یا بیوی کسی اور چرچ میں جا رہی ہے یا شوہر کسی اور میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے دعائیں رکتی ہیں؟ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ میرے جو یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ شوہروں کے لیے ہے۔ اگر آپ اوپر پہلی آیات دیکھیں تو وہاں بیویوں کے لیے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ یہ بیویوں کے لیے تاکید ہے اور نیچے جو ہے شوہروں کے لیے تھی۔ کیا لکھا ہے؟ شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ ہم نے نوٹ کرنا ہے، نیچے لکھا ہے عزت کرو، یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ کس کی نعمت کے؟ زندگی کی نعمت، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس نعمت کے وارث ہیں ہم، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ تو میرے جو آج ہم دیکھیں گے چھوٹا سا کہ کیسے جو ہے ہماری دعائیں رکتی ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب، جی نکال لیے، جو پڑھ سکتے ہیں ضرور لے لیں۔ ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیات سے میں چلتا جاؤں گا اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ لکھا ہے، پھر تمہارے اعمال کے سبب سے، سب سے پہلی بات پر غور کر لینا، یہ دونوں کا ہے، میاں اور بیوی کا اور شوہر کا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ کس لیے؟ ہمارے اعمال کے سبب سے، وہ چاہے جو ہے شوہر کے ہیں اور چاہے جو ہے بیوی کے، اعمال کے سبب سے۔ جیسے پیچھے ہم نے پطرس کے خط میں ایک بات جانی ہے کہ یہ جان رکھو کہ ہم دونوں جو ہے زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، اور اعمال کا حساب اپنا اپنا ہوگا۔ بیوی اپنے اعمال کا حساب دے گی، شوہر اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اعمال اپنے اپنے ہیں، بے شک دنیا میں ہم میاں بیوی ہیں، لیکن آسمان پر جو ہے ہمارا وہ رشتہ نہ ہوگا، وہ زمینی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے، کیونکہ نیچے اگر ہم دیکھیں تو بھی تم کہتے ہو کہ کس سبب سے، کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ تو خداوند فرماتا ہے سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوا بیوی ہے۔ تو میرے جب ہم اپنی جوانی کی بیوی، جس کا خدا کہتا ہے میں خود گواہ ہوں، جب ہم اسے چھوڑ کر میرے کسی اور پر نظر رکھیں گے یا جو ہے کسی اور سے شادی کر لیں گے تو پھر جو وہ کیا کرے گی؟ اگر ہم کسی اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یقیناً ہماری بیوی جو ہے ہمارے واسطے خدا کے مذبح پر آ کر روئے گی، آہ و نالہ کرے گی کہ اے خداوند میری دعا کو، میری فریاد کو، میری آواز کو جو ہے
तो कबूल कर, मेरे शौहर को अक्ल दे, ये मुझसे सही सलूक नहीं करता, मेरे साथ सही रहता नहीं है, और जो है तू इसकी ज़िंदगी को बदल, इसको चेंज कर, ताकि ये जो है अपने घराने पर जो है नज़र रखे, ना कि दूसरों पर। तो मेरे से हम देखते हैं खुदा कहता है फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला है। तो जब खुदावंद की बेटियां उसके मज़बा पर आहो नाला करेंगी, रोएंगी, तो क्या खुदावंद हमारे हाथ की हड्डियों को कबूल करेगा? नीचे लिखा भी है, ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो मेरी जब मेरी बीवी खुदा के मज़बा पर आकर मेरे लिए रो रही है, मेरी शिफायत कर रही है, तो मैं जितने भी चाहे जो है कुर्बानियाँ चलाऊँ, जितने हदिये दूँ, खुदावंद उन्हें कबूल ना करेगा, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो जो है जिसका गवाह खुदा था उसको छोड़कर जो है मैं एक और के पीछे जा रहा हूँ, या उससे मेरे संबंध हैं, तो जब वो आकर खुदा के हुजूर आहो नाला करेगी, तो क्या खुदा मेरी कुर्बानियों को या मेरे हाथ के उन हदियों को कबूल करेगा? इस वजह से खुदा कहता है फिर तुम्हारे अमाल के सबब से। और आगे अगर हम देखें मेरे जो लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? तो भी तुम कहते हो सबब क्या है? हम तो हदिये भी देते हैं, नजराने भी देते हैं, और जो है हम जो है हर चीज़ जो है खुदा के लिए दे रहे हैं, तब भी हमारी दुआएं रुक रही हैं, दुआ सुनी नहीं जाती, हमारा वो काम नहीं होता जो हम जो है दुआ में कहते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं, वो होता नहीं है। सबब क्या है? सबब ये है वो तेरी जवानी की बीवी जिसका जो है गवाह खुद जो है खुदा था, उसको जब तू छोड़कर बेवफाई कर कर जो है किसी और के पास जाएगा, तो मेरे जो वो आकर खुदा के हुजूर आहो नाला करेगी। और खुदा कहता है कि ऐसों की आंसुओं के आहो नाला की सबसे कसरत है, वहाँ पर इतने आंसू हैं, इतने आहो नाला है कि तुम जो है उनको गिन नहीं सकते। तो मेरे जो अगर हम देखें तो आगे लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके पास और भी अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। मेरे जो ये आदम के बारे में लिखा हुआ है, क्या खुदा के पास और रूहें नहीं थी? क्यों आदम के लिए एक ही बीवी बनाई थी? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो जब हम देखते हैं कि जब हम ज़्यादा बीवियाँ रखते हैं तो फिर खुदा तरस जो है नस्ल भी पैदा नहीं होती। अगर हम याकूब के घराने में देखें तो याकूब के घराने में भी जो है आपस में ही जो बहन भाई हैं उनमें ऐसा काम शुरू हो गया था कि जो है कलाम मुक़द्दस जब हम पढ़ें तो हमें समझ आता है, जब जो है खुदा तरस नस्ल ना पैदा हो तो फिर जो है अपने घर से ही जो है बुरे काम शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि आज अगर आदमी ऐसा करता है तो औरत उसके लिए आहो नाला करती है, और आंसुओं की कसरत से जो खुदा कहता है मेरे यहाँ जो है भरी पड़ी है, आहो नाला की कसरत भरी पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथी नज़र को खुशी से कबूल करूँगा। सबब यह है कि खुदा कहता है कि तू और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूँ, तूने उससे बेवफाई की है, अगर जब वो तेरी रफ़ीक और मनकूबा बीवी थी। आज जब हम अपनी बीवी से बेवफाई करते हैं, अगर बीवी हमसे करती है तो मेरे जो इस बात से जो है हमारी दुआएं रुक जाती हैं। अगर एक घर में दो बेटे हैं, एक होशियार हो और एक थोड़ा सुस्त होता है, तो होशियार को जो है हम किसी हल्के फुल्के सरकारी स्कूल में भी डाल देते हैं, और जो थोड़ा सुस्त होता है उसे हम जो है बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। अगर कोई पूछे तो हम उससे कहते हैं कि यार थोड़ा ढिला रहता है, इन्हों इधर तां पाया कि थोड़ा पढ़ाई टाइट है, वो होशियार ने तो ही निकल जाना। तो मेरी जो बात यही है, बेटे तो दोनों एक ही घर के हैं, फिर क्यों एक को जो है सरकारी स्कूल में और दूसरे को अच्छे वाले स्कूल में भर्ती किया हुआ है? बात यही आ जाती है कि किसी को कहीं समझ आ रही है, किसी को कहीं समझ आ रही है, लेकिन हम जो है अपनी जो है नज़रिए से, अपने सोच से हम कहते हैं कि शायद बीवी इसके ताबे नहीं,
या जो है ये शौहर इसके ताबे नहीं, इस वजह से जो है ये लग चलते हैं, इस बात से जो है इनकी दुआएं रुकती हैं। दुआएं जो है इस वजह से रुकती हैं, खुदा यहाँ पर फरमाता है कि जब हम अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई करते हैं, वो चाहे बीवी करती है चाहे शौहर करता है, उस वक्त में जो है हमारी दुआएं रुकती हैं। और लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से या ऐसा करने से हमारी दुआएं नहीं रुकती मेरे दोस्त। अगर हम देखें तो ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं मेरे दोस्त। अगर हम देखते हैं ज़िंदगियों पर गौर करें तो जैसे हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, दाऊद का जो है हम बात कर रहे थे, तो लिखा है नीचे, बावजूद इसके कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। ये मर्दों के लिए है, लिखा है अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूँ। और हमारे जो माशरे में तलाक का तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम दो करके भी जो है बड़े फ़ख्र के साथ घूमते हैं। मेरे जो अगर जिसने दो भी की हैं उसको कभी कोई नहीं बताता कि शरीयत हमें इस बात से रोकती है, मना करती है। अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह से सवाल किया गया था तलाक के बारे में, तो हम देखते हैं तरह तरह के जो है सवाल हैं, बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बात की थी कि सिवाय हरामकारी के कोई अपनी बीवी को ना छोड़े। मेरे जब हम हरामकारी करते हैं, वो चाहे मर्द है चाहे औरत है, तो दुआएं भी हमारी तभी रुकती हैं। कहीं और शौहर के जाने से या बीवी की जाने से हमारी दुआएं नहीं रुकती, या घर में छोटे मोटे झगड़े से हमारी दुआएं रुकती ही नहीं है। मेरे जो रुकती उसी वक्त है जब हम अपनी जवानी के बीवी को या जवानी के जो है शौहर को जो है बीवी छोड़ती है, तब हमारी दुआएं रुकती हैं। क्योंकि फिर हम जब बैठकर दुआ भी करेंगे तो जो है शौहर अगर जो है वो बीवी के साथ मुतफिक नहीं, उसका दिल नहीं, तो उसके ज़हन में जो है अपनी वो तीसरी की बातें चलती रहेंगी। और जब बीवी है अगर, तो बेशक हम बैठे इकट्ठे हैं, लेकिन उसमें जो है उसके ज़हन में अपने उस जो है वो दूसरे वाले की बातें चलती होंगी, जो उसके ज़हन में ऐसे जो है आकर प्रोसेस में ऐसे वक्त में जो है हमारी दुआएं रुकती हैं। और खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ, और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, ये जुल्म ही है कि हम अपनी बीवी को, उसको जिसको साथ जो है हमने वादे एतमान किया है, उस पर जब हम ऐसा जुल्म उठाते हैं, उसको छोड़कर हम किसी और के पास जाएं या ताल्लुक़ रखें, तो ये जुल्म ही है। ये जुल्म ज़रूरी नहीं है कि हम उठाकर उसके सर में कोई चीज़ मारें या उसको मारें। जुल्म सबसे बड़ा ये है कि जब हम किसी को जो है अपने घर में दूसरे को लाकर खड़ा कर दें। जैसे एक लफ्ज़ है मेरे जो हमारे पंजाबी में कहते हैं सौकर, तो हिंदी लफ्ज़ में देखें तो उसे क्या कहा जाता है, सौतन। सौतन, सौतन का मतलब, तन का मतलब तिनका। तो मेरे जो एक तिनका आँख में चला जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सौतन जो है 100 तिनका होती है, जब हम लाखों से खड़ा कर देंगे तो क्या हमारी बीवी बर्दाश्त करेगी? तो मेरे जो ऐसे वक्तों में आकर हमारी दुआएं जो है रुकना शुरू हो जाती हैं। हम जो है दुनियावी सोचों की वजह से, दुनियावी ख्यालों की वजह से, या अपने अपने जो है ज़हन से कह देते हैं नहीं मेरे को लगता है इनका इत्तेफाक नहीं है, इनकी दुआएं रुक जाती हैं, ऐसे ख़ानदानों की रुक जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी एक ही बात कही थी कि सिवाय हरामकारी के कोई अपनी बीवी को तलाक ना दे, अगर कोई देता भी है वो ज़िना करता है। तो मेरे जो ऐसे हमारी दुआएं रुकती हैं, ऐसे छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से, ऐसी बातों से जो है हमारी दुआएं नहीं रुकती। वहाँ पर भी हम देखते हैं तो लिखा है पतरस के ख़त में भी दोनों को ताकीद की जा रही है कि ये समझो कि हम ज़िंदगी की नेमत के दोनों वारिस हैं।
अगर तुम चाहते हो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी की वो नेमत मिले तो दोनों अपने अपने जो है अमाल को दुरुस्त करो। यहाँ पहली 13वीं आयत में लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। यहाँ पर अमालों की बात है। जब तक हमारे अमाल दुरुस्त हैं तो हमारी दुआएं भी सुनी जाएंगी। जब हमारे अमाल ख़राब होंगे तो मेरे अज़ीज़ों हमारी दुआएं भी रुकना शुरू हो जाएंगी। ना वो कहीं इधर जाने से रुकेगी ना उधर जाने से रुकेगी। दुआ हमारी तभी रुकेगी जब हमारे अमाल जो है इधर उधर होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों आज हमें चाहिए कि अपने अपने जो है बीवी है तो वो अपने अमाल दुरुस्त रखे, अगर शौहर है तो अपने अमालों को दुरुस्त रखे। और यकीनन मेरा ईमान है कि हमारी दुआएं जो है कभी भी नहीं रुकेंगी, ना कहीं और जाने से और ना कहीं आने से। मेरे जब तक के हमारे अमाल दुरुस्त हैं तो मुझे और आप सबको खुदावंद इस्लाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आखिरी दुआ हम भाई शरीफ के साथ मिलकर करेंगे। कल के मैसेंजर भाई खालिद और मीटिंग जो है वो कबीर भाई लीड करेंगे और आए हम आखिरी मिलकर दुआ करेंगे। आसमानी जलाली बाप खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आते हैं। बेशक जलाली पिता इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबको खल्क किया ताकि हम तेरी इबादत कर सकें। आसमानी पिता इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार है आसमानी पिता कि तूने हमें आसमानी पिता इस ज़मीन पर नूर बनाकर भेजा ताकि जलाली पिता हम दुनिया को रोशन करने वाले हों। आसमानी पिता इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुजार है आसमानी पिता। दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं आसमानी पिता इस वक्त में जितने लोग चर्च में मौजूद हैं आसमानी पिता, जो अपनी फरियादें, जो मिन्नतें, जो दरख्वास्तें आसमानी पिता तेरे हुजूर लाए हैं आसमानी पिता, जो भली है वो तू जानता है आसमानी पिता, उनको कबूल कर ताकि जलाली पिता इस वक्त में जब वो अपने ईमान से बढ़कर पाएँ तो आसमानी पिता तेरे नाम को जलाल दे। आसमानी पिता इस वक्त में दुआ करता हूँ आसमानी पिता अपने शहर के लिए, आसमानी पिता अपने इलाके के लिए खुदावंद इस वक्त में हब चौकी पर जो खुदावंद तारीकी का पहरा छाया हुआ है आसमानी पिता यीशु मसीह के नाम में आसमानी पिता उसको उजाले में तब्दील कर आसमानी पिता। ये नूर आसमानी पिता तेरे यीशु मसीह के नूर में चमके आसमानी पिता ये कलीसिया, ताकि जलाली पिता इस कलीसिया में से तमाम मुसीबतें दूर हों। जलाली पिता तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ इस ईमान के साथ कि तू हमारा यकसा खुदा है। जलाली पिता तू कल भी मोजज़ात की कुव्वत रखता था, तू आज भी मोजज़ात की कुव्वत रखता है आसमानी पिता। तुझसे दरख्वास्त करता हूँ आसमानी पिता की कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं आसमानी पिता तेरे कभी हाथ के नीचे उनको रखते हैं आसमानी पिता उन सबको शिफा दे आसमानी पिता। तुझसे दरख्वास्त करता हूँ भाई जॉन के लिए जिसका नाम आसमानी पिता तेरे मज़बा पर रखा गया आसमानी पिता, तो भाई जॉन को आसमानी पिता बेशक जलाली पिता मेरा ईमान है कि तूने भाई जॉन को बनाया है, खल्क किया है आसमानी पिता। मैं उससे उतनी मोहब्बत नहीं करता जलाली पिता जितनी तू उससे करता है आसमानी पिता। उसको तेरे कभी हाथ के नीचे रखता हूँ आसमानी पिता, वो तेरे हाथ की मखलूक है इस वक्त में आसमानी पिता, जो तमाम किस्म की आसमानी पिता जो उसका दिमागी तवाज़न आसमानी पिता तेरे हुजूर में है, डिस्टर्ब है आसमानी पिता, तो उसको मेंटली बहाल कर आसमानी पिता, ताकि जलाली पिता इस वक्त में आसमानी पिता अपनी तमाम मेंटली सोचों, फिक्रों, ख्यालों से आज़ाद होकर तेरे घर पे आने वाला हो आसमानी पिता। आसमानी पिता तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ आसमानी पिता, जितने लोग कर्ज़ की लानत में मुब्तला है आसमानी पिता, बेशक तेरी विलादत का दिन नज़दीक है आसमानी पिता, तो उनको आसमानी पिता इस कर्ज से आज़ाद कर, ताकि जलाली पिता जब वो नया साल, वो तेरी विलादत के दिन के बाद नया साल हो गए